अपराध को रोकने के लिए लगातार शहर फरीदाबाद में कई ऐसे मुहिम चलाए जाते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि फरीदाबाद के खासकर मंझौली स्थित यहाँ बाल कल्याण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में दुर्गा शक्ति, जो कि पुलिस की एक स्पेशल टीम है, यहाँ आज स्कूल के कैंपस में जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि इन बच्चों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो मोबाइल के माध्यम से या फिर खुद इनके ऊपर बहुत सारे अपराध घटते हैं। ऐसे में इनको आज दुर्गा शक्ति जो टीम है हरियाणा पुलिस की, उसके माध्यम से आज बच्चों को जागरूक किया गया है। इन बच्चों को किस तरीके से अपराध को कंट्रोल किया जाए या फिर जागरूक रह के कहीं आसपास में घटने वाली घटनाओं के बारे में जो संबंधित विभाग है जागरूक करने के तौर तरीके बताए गए। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का जो सेशन है, उन बच्चों ने सीखा है कि किस तरीके से अपनी बचाव करना है और आसपास जो घटने वाली घटनाओं के बारे में संबंधित विभाग को किस तरीके से जागरूक करना है। आज आप लोगों के स्कूल में जो पुलिस महकमे की टीम है वो आई, आप लोगों को जागरूक किया, बताया, क्या कुछ सीखा, बेसिकली क्या कुछ आप लोगों को लगा इससे? Firstly, I would be very thankful to Durga Shakti team that they motivate us and give lots of information about these crimes that girls face. Many times those girls face, in case of emergency, they would be very fear. They think that is her mistake, but this is not her mistake. Firstly, we would be very confident. We can complain to any police station and any police department, government department, and to Durga Shakti team. This is not our mistake that we are facing this type of crimes. We can feel any type of bad touch and any type of harassment and any would doing bad thing to us, so we would not fear about them. And I would be very confident. They give us lots of information about these crimes and rights which would be for girls. How can we FIR about these crimes and how can we take action, and we would do anything to our self-defense. For our self-defense, we can't do any fear. We would be very confident, and I am thankful. Can you explain, just like when she was telling you about just like how you can act if someone attacking you, so how will you be able to defeat or take the action against you? I can take any action for our self-defense, and not for ourselves only. Any girl will facing this type of problem, I can also help to them. And ma'am would teach us many types of self-defense positions, and we can take. So I can do this. What's your name? My name is Tia. So what did you learn today? आप लोगों ने कुछ सीखा? बताएंगे प्लीज, क्या सीखा? Firstly, we were thankful to Durga Shakti team that we motivate our girls. Then हमें कुछ जैसे हमारे साथ in case any problem, we take a strict action about this. I study in 8th standard. So what did you learn? How will you be able to overcome such a situation? Firstly, I would thankful to Durga Shakti and आप लोग बताओ, क्या आपने क्या सीखा वैसे? Firstly, I was very thankful to the Durga Shakti team. We learned many things from the Durga Shakti team. They teach us that in the case of any situation, how can we fight with that person. And because you were telling about the banking fraud nowadays, it is very common to each and everyone. If each and everyone can face such a false call, we receive most of the people. So how you can save, or how you can tell your parents so that you can save your bank account or such a fraud call? this situation also most happened by the childrens, because they also playing games and they also give many informations in their account that attached to their parents account, and this type of situation that. And after this section we are very awareness and we get many knowledge from. आमीन बाल कल्याण स्कूल में आज बच्चों के साथ में आपका इंटरेक्शन हुआ। बच्चों को आपने बहुत कुछ ऐसी जानकारी दी जो हमारे समाज में आए दिन घटते रहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो बैंकिंग की फ्रॉड जो है बहुत कॉमन है, और महिलाओं के साथ अत्याचार, ये दो बहुत कॉमन है और मोस्टली बहुत प्रमुखता से अपनी बात रखी है। क्या लगता है इन बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी?
बेशक जो चीज़ें हमें नहीं पता और जो चीज़ें हमें बचपन में सिखाई जाती हैं वो हमेशा के लिए याद रहती हैं। आपने सुना होगा जो आदत शुरू में बचपन में पड़ जाती है उस आदत को व्यक्ति नहीं छोड़ पाता। एक हम अवेयर हमारे आदरणीय श्री विकास कुमार अरोड़ा जी IPS CP फरीदाबाद में हमारी एक टीम बना रखी है जिसमें हमारा अवेयरनेस का ही मकसद है कि हम खासकर उन बच्चों को, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, तो उसमें कई बार हमें ऐसे चीज़ें परोसी जाती हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो बच्चे सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। उसकी वजह से हर एक स्कूल में और भी बच्चे डरे नहीं या अपनी बात को, कोई भी उनके साथ क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करें। वुमेन पुलिस स्टेशन उनके लिए बनाए गए हैं, साइबर पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स है जैसे 112 हो गया, हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है जो कि मल्टीपर्पज है। अगर आपने सुना भी होगा, जैसे मैंने बताया था 112 की बात कर रही हैं, लेकिन आप लोग ये भी दावा करते हैं कि हम 10 बजे के बाद भी जो ऐसे कोई मेल फीमेल हैं, स्पेशली उनको घर तक हम छोड़ने की बात तो होती है, लेकिन कई बार ऐसी कंप्लेन हम लोगों के पास भी आते हैं उनका 112 जो है रिस्पांस नहीं कर पाती है 10 बजे के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, आप कभी भी कॉल करके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा एक भी केस मेरे ख्याल से रिपोर्ट नहीं हुआ है कि 112 की टीम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने है तो ज़रूर आप उसको बताएं, सीनियर अधिकारी उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। बाकी हमारी तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अश्योर है कि 112 की जो हमारी टीम है, जो ERV व्हीकल्स हैं, वो विदिन 10 to 15 मिनट्स, अगर आपका रिमोट एरिया में है, गांव का एरिया है या फिर व्हीकल्स का, ट्रैफिक का किसी का जाम नहीं लगा, तो विदिन 10 मिनट्स आपके पास पुलिस पहुंच जाए। किरण अरोड़ा, प्रिंसिपल ऑफ बाल कल्याण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे स्कूल में दुर्गा शक्ति की टीम आई थी और इसमें जो सविता इंस्पेक्टर थी उन्होंने बच्चों को हमारे बिल्कुल साइबर कैफे के बारे में और क्राइम के बारे में, जो भी क्राइम्स होते हैं बच्चों के साथ, वो सब उनके बारे में बताया। 6 to 12 गर्ल्स जो हैं, बड़ी गर्ल्स हैं, जो हमारे जिनके साथ ये सब चीज़ होती है, जो ये बच्चे करते हैं, उन्हें बताया कि किस तरह से हमें मोबाइल का भी गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, अपनी किसी तरह की भी कोई भी गलत फोटोज़ या कोई भी किसी तरह के लिंक कोई भी शेयर नहीं करना चाहिए। जो कि 6 to 12 के बच्चे थोड़े मैच्योर होते हैं, उन्हें इन चीज़ों की समझ होती है और वो सब जो है इनको समझकर और अपने जीवन में इनको अपना सकते हैं। एक हरियाणा पुलिस टीम की एक टीम है, आज यहाँ स्कूल में बच्चों को जागरूक किया है, तो जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चे एक्साइटेड हैं और वो कुछ जानना चाहते हैं। आज दुर्गा शक्ति की टीम भी आई है और हमारे इस प्रोग्राम को कैप्चर करने के लिए आपका भी हमें सहयोग मिला है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दुर्गा शक्ति वाली जो टीम है उन्होंने हमें टाइम दिया और बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया है। उन्होंने जो गर्ल्स हरासमेंट के जो केसेस होते हैं उनके विषय में बताया है, साइबर क्राइम के विषय में बताया है, तो उनसे हम बहुत ही कीमती जानकारी हमें उनसे मिली है। पेरेंट्स से, जैसे कि हमारी दुर्गा शक्ति वाली टीम ने भी बताया था कि अपने बच्चों को हमने फ़ोन से दूर रखना है, क्योंकि बच्चे कभी कभी गेम खेल रहे होते हैं तो उनमें कई बार एक्सेस आ जाते हैं। इसको आप अलाउ करोगे तो उससे मोबाइल से काफ़ी बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, या बच्चे मोबाइल पर कुछ असली वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा उनसे यही है कि कम से कम ये चाहिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।